students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model School 3B1 Mohali. Dear students, today I am going to start the second chapter of genetics, that is the molecular basis of inheritance. First of all, what is meant by the term inheritance? Inheritance means the transmission of characters from one generation to the next generation. And this inheritance is controlled by genetic material. The genetic material, this is responsible for the transmission of characters from one generation to the next generation. So today in this chapter, our first topic is search for genetic material. What is the chemical nature of this genetic material? Dear students, in my previous chapter, I told you that in the year 1902, Sutan and Boveri, they gave chromosomal theory of inheritance, in which they stated that chromosomes, they are acting as the vehicle for the transmission of characters from one generation to the next generation. Now these chromosomes, they are made up of two particles. One is the protein part and other is the DNA part. Now out of these two, which is the genetic material? So this was proved by a number of experiments which were performed at the different times. Till 1940s, it was believed that proteins, they act as the genetic material. Why? Because these proteins, they are having huge variety and they are performing a number of functions. Dear students, these proteins are actually made up of just 20 amino acids. These 20 amino acids, they combine in different numbers, in different ways, and they have formed a huge variety of proteins. So till 1940s, it was believed that the proteins, they act as the genetic material. But after that, a number of experiments was performed, and through these experiments, it was proved that proteins, they are not the genetic material. Actually, it is the DNA which is the genetic material. Because these proteins, they lack one of the important characteristics which must be present in a genetic material. क्या important characteristics है बच्चों? That the proteins or the genetic material, it should be able to replicate itself. वो अपनी copies बना सके. जेनेटिक मटेरियल में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी रेप्लिका बना सके, वो अपनी कॉपीज बना सके और उसको अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर सके. बट ये जो चीज़ है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन्स. सो इसीलिए प्रोटीन्स को डिस्कार्ड कर दिया गया, दैट दे आर नॉट द जेनेटिक मटेरियल. So what are the characteristics of a genetic material? पहला characteristics है बच्चों that it should be present in all the cells and its quantity should also be same. वो सभी सेल्स में प्रेजेंट हो और उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो अपनी रेप्लिका बना सके, वो अपनी कॉपीज बना सके और उसे अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर सके. और तीसरी चीज है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करे. डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा? प्रोटीन्स को बना के, आरएनएस को फॉर्म करके इट विल बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. सो टुडे वी विल बी doing what were the experiments by which it was proved that DNA, it acts as the genetic material. So the first experimental evidence that DNA is the genetic material, that was given by Griffith. Griffith along with Avery performed transformation experiment, and through this experiments they came to a conclusion that DNA is acting as the genetic material. But the first experiment that was performed by S.F. Griffith in the year 1928. Griffith used this bacteria Streptococcus pneumoniae, which causes pneumonia. Now this bacteria is having two strains. It is having two strains. जैसे हम plants में varieties की बात करते हैं और एनिमल्स में ब्रीड्स की बात करते हैं, वैसे बैक्टीरिया की जो वैरायटीज होती हैं उनको हम वैरायटी टर्म से डिनोट नहीं करते, उनको हम स्ट्रेन से डिनोट करते हैं. तो डिप्लोकोकस निमोनाई जो कि निमोनिया कॉज कर रहा है, इसके दो स्ट्रेन्स हैं. वन इज द स्मूथ स्ट्रेन, एस स्ट्रेन भी जिसको कहते हैं, एंड द अदर इज द आर स्ट्रेन और द रफ स्ट्रेन. अब ये जो स्मूथ स्ट्रेन है बच्चों, इस स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया में क्या है? कैप्सूल प्रेजेंट है. कैप्सूल विच इज द आउटर कवरिंग
present outside the cell wall of bacteria. और जो रफ स्ट्रेन है उनमें कैप्सूल इज एब्सेंट. सो एस स्ट्रेन में कैप्सूल प्रेजेंट है और आर स्ट्रेन में कैप्सूल एब्सेंट है. एस स्ट्रेन में क्योंकि कैप्सूल प्रेजेंट है सो इट इज विरुलेंट. विरुलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? डिजीज कॉजिंग. ये डिजीज कॉज कर रहा है. एंड द आर स्ट्रेन दिस इज नॉन विरुलेंट. It doesn't cause diseases. Now why S strain is virulent? ये disease cause कर रहा है because S strain में कैप्सूल प्रेजेंट है और जब ये बैक्टीरिया हम इंजेस्ट करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता. इसीलिए जो बैक्टीरिया है इट कॉजेस डिजीजेस. जबकि आर स्ट्रेन में कैप्सूल एब्सेंट है तो इसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है. इसीलिए आर स्ट्रेन जो है वो डिजीज कॉज नहीं करता है. So SF Griffith he performed a very important experiment which is known as Griffith transformation experiment. और उसके बाद एवरी ने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. सो इसलिए दोनों का नाम जो है वो इंक्लूड होता है in the transformation experiments. So let us study all of these experiments by which it was proved that DNA is acting as the genetic material. Hello students. So let us start the topic, the search for genetic material, or what were the various experimental evidences by which it was proved that DNA it is acting as the genetic material. Now first of all, what are the various characteristics of a genetic material? जेनेटिक मटीरियल्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? अ जेनेटिक मटीरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. वो अपनी कॉपीज़ बना सके और उसे अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सके. सेकेंड चीज़ है बच्चों दैट इट शुड स्टोर द इंफॉर्मेशन, द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म. बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को उसने अपने अंदर स्टोर करके रखा हो, दैट टू इन अ कोडेड फॉर्म. थर्ड थिंग इज़ दैट इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. वो अपने आप को एक्सप्रेस करे. कैसे एक्सप्रेस करे? प्रोटीन्स फॉर्म करके, आरएनए फॉर्म करके. बिकॉज अल्टीमेटली बॉडी में फंक्शंस जो हैं दीज आर टू बी परफॉर्म बाय दीज प्रोटीन्स. एंड लास्ट चीज़ है दैट इट शुड बी स्टेबल और इट शुड चेंज, बट द चेंज शुड बी इन अ कंट्रोल वे. वो स्टेबल हो बट ओकेशनली उसमें चेंजेस आए, बिकॉज ये चेंजेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. सो ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ इट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ जेनेटिक मटीरियल. और प्रोटीन्स को वाई दे वर डिस्कार्डेड that they are not acting as the genetic material, because जो proteins हैं they are not able to replicate itself. ये अपनी copies form नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको discard कर दिया गया that they are not acting as the genetic material. So a number of experiments they were performed at different times by different scientists so as to prove that DNA it is acting as the genetic material. First experiment जो था that was performed in the year 1928 by Frederick Griffith, and the name of the experiment was bacterial transformation experiment. And Griffith gave an initial evidence that DNA it is acting as the genetic material. But 100% जो confirmation थी ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को that DNA it is acting as the genetic material, that was given by these three scientists, and they repeated Griffith's experiment to prove that DNA it is acting as the genetic material. तो पहला एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है वो एक्चुअली इन तीन साइंटिस्ट को ही जाता है. बट क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था ग्रिफ्थ ने, इसीलिए ग्रिफ्थ का नाम जो है वो मेंशन किया जाता है इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थ्री साइंटिस्ट दे एक्चुअली रिपीटेड ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट एंड उसे 100% श्योर किया दैट DNA इट इज़ एक्टिंग एज द जेनेटिक मटीरियल. और जो थर्ड सेट है एक्सपेरिमेंट का विच वॉज परफॉर्म बाई अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, इन्होंने तो
confirmed कर दिया that DNA it is acting as the genetic material. So we will study all of these experiments one by one and how these experiments they were performed and how it was proved that DNA it is acting as the genetic material. So the first experiment was performed by Frederick Griffith in the year 1928. And Griffith he used the bacteria Diplococcus pneumoniae. This bacteria it causes the disease pneumonia. And Diplococcus pneumoniae के दो strains हैं, दो forms हैं. One is the R form and other is the S form. जो S form है वो smooth form है because it is having capsule outside the cell wall. Whereas जो रफ स्ट्रेन है वो रफ कॉलोनीज बना रही है बिकॉज उसमें कैप्सूल जो है वो एब्सेंट है. अब ये जो कैप्सूल की प्रेजेंस और एब्सेंस ही डिटरमाइन कर रही है वेदर इट इज़ स्मूथ और रफ और वेदर इट इज़ विरुलेंट. विरुलेंट मीन्स डिजीज़ कॉजिंग है या वो ए विरुलेंट है, इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी डिजीज़. तो जो स्मूथ स्ट्रेन है बैक्टीरिया का उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है एंड इट इज़ विरुलेंट, इट इज़ कॉजिंग डिजीजेस. वेराज जो आर स्ट्रेन है उसमें कैप्सूल एब्सेंट है और वो ए विरुलेंट है, वो डिजीज़ कॉज नहीं करता. सो ग्रिफ्थ ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो माइस पे परफॉर्म किया और उसने डिप्लोकोकस निमोनाई के दोनों स्ट्रेन्स को इंजेक्ट करके डिटरमाइन करने की कोशिश की दैट व्हाट इज़ द जेनेटिक मटीरियल. So this was the Griffith experiment which he performed to prove that DNA it is acting as the genetic material. पहले सेट में फर्स्ट सेट को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स. फर्स्ट सेट में उसने लाइव एस स्ट्रेन, एस कौन सा स्ट्रेन है, विरुलेंट है, डिजीज़ कॉजिंग है, वो इंजेक्ट किया माइस के अंदर. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया दैट द माइस सफर्ड फ्रॉम निमोनिया एंड इट डाइड because S virulent है and it caused disease to the mice and the mice died. सेकेंड सेट में उसने क्या किया, सेकेंड सेट में उसने लाइव आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन क्या है, नॉन विरुलेंट है, ये डिजीज़ नहीं कॉज करते. उसने ये वाले बैक्टीरिया माइस को इंजेक्ट किए एंड द माइस सर्वाइव्ड बिकॉज द आर स्ट्रेन इज़ द नॉन विरुलेंट स्ट्रेन. थर्ड सेट में उसने क्या किया बच्चों, थर्ड सेट में उसने दोबारा एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया बट एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करने से पहले उसने उसको हीट किया. हीट किल्ड एस स्ट्रेन को उसने इंजेक्ट किया इनटू द माइस एंड व्हाट ही ऑब्जर्व दैट द माइस सर्वाइव्ड. जब वो एस स्ट्रेन विदाउट हीटिंग इंजेक्ट कर रहा था उस केस में माइस की डेथ हो रही थी, बट जब उसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया इनटू द माइस देन द माइस सर्वाइव्ड. नाउ व्हाट ही डिड, नाउ ही पुट अ मिक्सचर ऑफ आर स्ट्रेन एंड हीट किल्ड एस स्ट्रेन. दोनों ही केसेस को जब उसने इंडिविजुअली दिया तो माइस क्या कर रहे हैं, माइस सर्वाइव्ड कर रहे हैं. अब उसने क्या किया, इन दोनों का मिक्सचर ले लिया, आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मिक्सचर लिया इन हिज फोर्थ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट और इस मिक्सचर को इंजेक्ट किया इनटू द माइस. अब इंडिविजुअली ये दोनों चीज़ें जो हैं ये नॉन विरुलेंट हैं, ये डिजीज़ कॉजिंग नहीं कर रहे हैं एंड दे आर नॉट कॉजिंग द डेथ ऑफ द माइस. बट जब दोनों का मिक्सचर इंजेक्ट किया इनटू द माइस देन ग्रिफ्थ वाज शॉक्ड टू सी दैट द माइस डाइड. और उसने जब माइस का ब्लड सैंपल जो है वो चेक किया तो उसके अंदर उसे लाइव एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड हुए. सो वॉट ही कंक्लूडेड बाई हिज एक्सपेरिमेंट, उसने क्या कंक्लूड किया बाई हिज एक्सपेरिमेंट. सो दिस वॉज हिज कंक्लूजन. ही कंक्लूडेड दैट कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है जब उसकी हीटिंग की है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई और वो चीज़ जो है हीट किल्ड एस स्ट्रेन की इट हैज़ एंटर्ड इनटू आर स्ट्रेन, वो आर स्ट्रेन के अंदर एंटर कर गई है और उसने आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया है इनटू एस स्ट्रेन.
मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ग्रिफ्थ ने क्या कंक्लूड किया? ग्रिफ्थ ने ये कंक्लूड किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुई है और इट हैज़ एंटर्ड इनटू आर स्ट्रेन, वो आर स्ट्रेन के अंदर एंटर कर गई है और उसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इनटू एस स्ट्रेन। अब ये चीज़ क्या है, इसका केमिकल नेचर तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने नहीं पता लगाया कि ये है क्या, और इसीलिए उसने उसका नाम क्या रखा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो actually chemical nature of the substance that was not determined by the Griffith and he called it what? He called it transforming principle. उसने कहा कि transforming principle जो है वो heat killed S strain में से enter किया है into R strain and it has transformed the R strain into the S strain. So this was the first experimental evidence which was given by Griffith to prove that DNA it is acting as the genetic material. Why I am saying that DNA it is acting as the genetic material? Because बाद में 3 साइंटिस्ट आए और तीनों साइंटिस्ट ने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया और जो एस स्ट्रेन था, हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन है, उसके 3 फ्रैक्शंस बनाए, एक कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, एक प्रोटीन वाला पार्ट और डीएनए वाला पार्ट, और तीनों पार्ट्स को अलग अलग मिक्स किया विद दी आर स्ट्रेन, with the R strain and with the R strain and individually इंजेक्ट किया into the mice। और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने डीएनए वाला पार्ट इंजेक्ट किया है into the with the R strain into the mice, उस केस में माइस की क्या हो रही है? डेथ हो रही है। So who were these 3 scientists? These 3 scientists were Oswald Avery, मैकलन मैककार्टी एंड मैक्लियोट। ये तीनों साइंटिस्ट ने पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया दैट डीएनए इट इज़ एक्टिंग एज द जेनेटिक मटेरियल। बिकॉज फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने टर्म नहीं दिया था, उसने नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसने ट्रांसफॉर्म किया है आर स्ट्रेन में इनटू एस स्ट्रेन। बट इन तीनों साइंटिस्ट ने ये पता लगाया भी एक्चुअली वो जो एस स्ट्रेन है उसका डीएनए एंटर किया है इनटू दी आर स्ट्रेन और उसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म किया है इनटू दी एस स्ट्रेन। सो व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन है उसका प्रोटीन पार्ट और उसका डीएनए पार्ट अलग अलग कर दिया और फिर प्रोटीन पार्ट को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और डीएनए को भी आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और दोनों को इंजेक्ट किया इंडिविजुअली इनटू दी माइस। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि जिस केस में उन्होंने डीएनए को मिक्स किया है विद दी आर स्ट्रेन, उस केस में माइस की क्या हो रही है? डेथ हो रही है। सो एक्चुअली डीएनए है जो कि एंटर किया है फ्रॉम दी heat killed S strain into the R strain and it is transforming the R strain into the S strain। तो जब S strain को heat killed किया जा रहा है it means DNA part जो है वो destroy नहीं हुआ by the heating और ये DNA जो है ये enter किया into the R strain और उसने R strain को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस स्ट्रेन में। क्यों? बिकॉज वो इंफॉर्मेशन लेके आया अबाउट द सिंथेसिस ऑफ कैप्सूल। उसने आर स्ट्रेन के चारों तरफ कैप्सूल फॉर्म किया और इस तरीके से आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया इनटू एस स्ट्रेन। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बाय विच इट वाज प्रूव दैट डीएनए इट इज़ एक्टिंग एज द जेनेटिक मटीरियल। तो इसीलिए जब ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट आता है तो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के बाद हम इन तीनों साइंटिस्ट के वर्क को भी मेंशन करते हैं बिकॉज एक्चुअली इन तीनों साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था दैट डीएनए इट इज़ एक्टिंग एज द जेनेटिक मटीरियल। बिकॉज ग्रिफ्थ ने तो टर्म दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, सो दे सेड दैट डीएनए it is the transforming principle। So this was the first experimental evidence by which it was proved that DNA it is acting as the genetic material। Second set of experiments was performed by Martha Chase and Alfred Hershey।
So both of these scientists, Hershey and Chase, they confirm that DNA is the genetic material. Both of these scientists, they performed experiment in the year 1952, and by their experiment they came to 100% conclusion that DNA, it is acting as the genetic material. Hershey and Chase, they experimented on bacteriophages. Now, what are bacteriophages? Bacteriophages, they are the viruses which attack on bacteria. And these bacteriophages, they are having a very simple structure. They are having a protein coat enclosing DNA inside. So actually these viruses, they are nucleoprotein entities. These are made up of two components, DNA and protein. So the bacteriophage, it is also having two parts. One is the DNA part and the other is the protein part. And both of these scientists, they wanted to confirm that when this bacteriophage, it attacks on bacteria, then which part, whether it is DNA or it is protein part which is entering inside the bacteria. So the part which will enter inside the bacteria, that will be the genetic material. So हर्शी और चेस अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ करना चाहते थे कि जब एक बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो कौन सी चीज़ अंदर एंटर कर रही है, वेदर इट इज़ DNA or it is the protein. So if the DNA will enter, then DNA will be the genetic material, and if protein will enter inside, then protein will be the genetic material. So what they did इन देयर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने वायरस के दोनों पार्ट्स को रेडियो लेबल किया. एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रोटीन कोड को रेडियो लेबल किया विद S35. हमें पता है कि सल्फ़र जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन. सो एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैक्टीरियोफाजेस को ग्रो किया ऑन S35 मीडियम, ताकि बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन पार्ट जो है वो रेडियो लेबल्ड हो जाए. और सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैक्टीरियोफाजेस को ग्रो किया ऑन P32 मीडियम, ताकि उसका DNA पार्ट जो है वो रेडियो लेबल्ड हो जाए, बिकॉज फॉस्फोरस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ DNA. और दोनों सेट ऑफ फाजेस, दे वर मेड टू अटैक ऑन बैक्टीरिया. सो पहले हम पहला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो कंसिडर करते हैं. पहले सेट में डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन पार्ट दैट इज़ रेडियो लेबल्ड, और जब इस प्रोटीन लेबल्ड बैक्टीरियोफाज को अटैक करवाया गया ऑन द बैक्टीरिया, देन इट वाज फाउंड दैट देयर इज़ नो रेडियो एक्टिविटी विद इन द बैक्टीरियल सेल्स, and all the radioactivity is present outside in the viral components. और दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जिसमें डीएनए को रेडियो लेबल किया गया, जब ऐसी वायरसेस को जिनका डीएनए रेडियो एक्टिव है, इनको अटैक करवाया गया ऑन द बैक्टीरिया, तो देखा गया कि सारी की सारी रेडियो एक्टिविटी जो है वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो गई. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स डीएनए जो है दैट इज एंटरिंग इनसाइड द बैक्टीरिया. दैट्स वाई जब डीएनए को हमने रेडियो लेबल किया है तो बैक्टीरिया क्या हो गया? रेडियो लेबल्ड हो गया, बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव हो गया. और जिस सेट में हमने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया, उस केस में बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं हुआ. इट मीन्स डीएनए एंटर कर रहा है विद इन द बैक्टीरियल सेल एंड द प्रोटीन कोट इट रिमेन्स आउटसाइड. सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट, Hershey and Chase, they confirm that DNA that is acting as the genetic material. एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरियोफाजेज हैं और बैक्टीरिया हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक, सो दे आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई. सो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट्स हो कहाँ पे रहा है? दीज एक्सपेरिमेंट्स दे आर परफॉर्म इन दिस टेस्ट ट्यूब्स. सो टेस्ट ट्यूब्स में ही बैक्टीरियाज लिए गए हैं और रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफाजेस लिए गए हैं. पहले केस में S35 लेबल्ड बैक्टीरियोफाजेस लिए गए और दूसरे केस में P32 लेबल्ड बैक्टीरियोफाजेस लिए गए. सो पहले सेट में प्रोटीन लेबल्ड हैं, प्रोटीन रेडियो एक्टिव है. सो देखो, सारे एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट ट्यूब्स में हो रहे हैं. अब टेस्ट ट्यूब्स में वायरसेस
और बैक्टीरियाज को मिक्स किया गया ताकि ये वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया पे अटैक करें। उसके बाद क्या किया जाता है बच्चों कि शेकर्स में ज़ोर से सोल्यूशन जो है वो शेक किया जाता है ताकि वायरस का जो कंपोनेंट है जो अंदर एंटर नहीं किया है विद इन द बैक्टीरिया वो सेपरेट हो जाए फ्रॉम द वॉल ऑफ द बैक्टीरियाज। और फिर क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में होगा क्या कि जो हैवियर चीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी इन दी पैलेट और जो हल्की चीज़ है लाइटर है वो ऊपर कलेक्ट हो जाएगी इन दी सुपरनेटेंट। अब बैक्टीरिया और वायरसेस में कौन सी चीज़ हैवी है, बैक्टीरियाज हैवी है, तो बैक्टीरियाज क्या बनाएंगे, पैलेट्स बनाएंगे और वायरस का जो पार्ट है जो एंटर नहीं किया है दैट विल फॉर्म दी सुपरनेटेंट। तो पहले केस में देखा गया कि सारी रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे आई, सुपरनेटेंट में आई। और दूसरे सेट में जहाँ पे डीएनए को रेडियो लेबल किया गया वहाँ पे देखा गया कि सारी रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे आ गई, पैलेट में आ गई, दैट इज़ इन दी बैक्टीरिया आ गई। सो इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स दिस वाज कंफर्म दैट डीएनए दैट इज एक्टिंग एज दी जेनेटिक मटेरियल। वेरी इंटरेस्टिंग experiment which was performed by both of these scientists came to a conclusion that in the bacteriophages and in other organisms also DNA that is acting as the genetic material. So what were the conclusion of Hershey and Chase? Hershey and Chase by their experiments they clearly indicated that it is the DNA and not the proteins which are entering the bacterial cell. Protein code जो है that is left outside. The DNA entering the host cell, it is carrying all the genetic information for synthesis of new phage particles and therefore वो अंदर जब बैक्टीरिया के अंदर जा रही है, वायरस का जब DNA जा रहा है तो वो अंदर न्यू फाज पार्टिकल्स जो है वो फॉर्म कर रहा है। एंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट्स दिस वाज प्रूव दैट DNA is the genetic material. So this was all about the various experimental evidences by which it was proved that DNA is the genetic material. So dear students, in my next video I will discuss about the structure of DNA. Till then students, thank you.